Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. So our today's topic is from unit number 2. So this is the last topic, that is transition from IPv4 to IPv6. So in the previous video we have studied about what are different IPv6 addressing modes, that is what was unicasting, multicasting and anycasting. What are different IPv6 address types, that is how to write the IPv6 address in hexadecimal notations with certain rules to shorten the length of IPv6 address. So in today's video lecture we will study difference between IPv4 and IPv6, transition from IPv4 to IPv6, that is what is transition, that is change when the IPv4 address is changed to IPv4 address. PO mapped is PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, 8, 9 and 10. So coming to differences between IPv4 and IPv6, as we all know, IPv4 is a 32-bit protocol as well as IPv6 is a 128-bit protocol having 128-bit address. IPv4 has 32-bit address. IPv4 has a header of variable length, that is of 20 to 60 bytes, while IPv6 has a fixed header of 40 bytes. Address representation of IPv4 is in decimal notation, whereas address representation of IPv6 is in hexadecimal notation. Fragmentation in IPv4 is performed by sender and forwarding routers, whereas fragmentation in IPv6 is performed only by the sender. So these are the basic differences we have also seen in this previous slide. In IPv4, encryption and authentication facility is not available. In IPv6, encryption and authentication facility is available because the fragmentation is done only at the sender side. So now we move to our main topic, that is transition from IPv4 to IPv6. What is transition? Transition means change. When we want to send a request from IPv4 to IPv6 address, जब भी हमको कोई डेटा पास करने का है फ्रॉम IPv4 एड्रेस टू IPv6 एड्रेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो क्या है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज IPv4 एंड IPv6 चेंज इज़ नॉट कॉम्पेटिबल. क्यों कॉम्पेटिबल नहीं है? क्योंकि IPv4 है हमारा 32 बिट का एड्रेस और IPv6 कितने बिट का है, 128 बिट का. तो कॉम्पेटिबिलिटी सेट नहीं होता है between IPv4 and IPv6. The solution for this problem, that is to overcome, इससे बाहर निकलने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे जो compatibility सेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज डुअल स्टैक राउटर्स. फर्स्ट टेक्निक कौन सा है, डुअल स्टैक राउटर्स का. सेकंड इज ऑफ टनलिंग एंड थर्ड टेक्निक इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन और NAT ट्रांसलेशन सिंपली इट इज कॉल्ड. तो ये क्या कर रहे हैं हम, जब हम चेंज करेंगे फ्रॉम IPv4 टू IPv6, IPv4 में एड्रेसेस लिमिटेड है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने IPv6 बनाया. IPv4 था 32 बिट का, IPv6 है 128 बिट का. तो दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है. कॉम्पेटिबिलिटी का मीनिंग क्या हो रहा, अगर IPv4 होस्ट, सपोज मैं IPv4 होस्ट हूँ और मैं डेटा सेंड कर रहा टू IPv6 एड्रेस, तो मेरा डेटा कितने बिट का जा रहा है, 32 बिट का, बट रिसीविंग साइड तो 128 बिट चाहिए उसको. तो कॉम्पेटिबिलिटी हो रही क्या, नहीं हो रही. तो ओवरकम करने के लिए उन प्रॉब्लम को हम ये 3 टेक्निक्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ डुअल स्टैक राउटर्स, टनलिंग टेक्निक एंड NAT ट्रांसलेशन टेक्निक. तो कमिंग टू द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज डुअल स्टैक राउटर्स.
राउटर कैन बी इंस्टॉल्ड विथ बोथ IPv4 एंड IPv6। अभी देखो इसमें क्या किया हमने, जो भी राउटर है इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो उसको किसके साथ कॉम्पेटिबल बनाया हमने, IPv4 के एड्रेस के साथ भी और IPv6 के एड्रेस के साथ भी, और वो एक स्टैक मेमोरी में ये दोनों एड्रेसेस को रखेगा, 32 बिट के एड्रेस को भी और 64 बिट के एड्रेस को भी, इसलिए उसको कहते हैं हम डुअल स्टैक राउटर। सो राउटर कैन बी इंस्टॉल्ड विद बोथ IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस configured on its interfaces pointing to the network of relevant IP scheme। तो देखो ये डायग्राम दिया है, तो एज शोन इन द गिवन डायग्राम अ सर्वर हैविंग IP4 एज वेल एज IPv6 एड्रेस। कौन सा सर्वर है, इसके पास क्या है, IP6 एड्रेसेस भी है एज वेल एज IP4 एड्रेसेस भी है, can now speak with all the host on both IPv4 as well as IPv6 network। अभी ये सर्वर के पास क्या है, IPv4 का 32 बिट एड्रेस भी है और IPv6 का 128 एड्रेस भी है। तो ये क्या करेगा, ये विद द हेल्प ऑफ डुअल स्टैक राउटर, ये है हमारा डुअल स्टैक राउटर, IPv4 से भी कम्युनिकेट कर सकता एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ IPv6 के साथ। ये पूरा एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा, ये हमारा डुअल स्टैक राउटर जिसके पास दोनों एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर इसके पास IPv4 का एड्रेस आया, सपोज 32 बिट का एड्रेस आया, तो ये किसके पास रिडायरेक्ट करेगा, IP4 नेटवर्क की तरफ, और इसके पास अगर 128 बिट का एड्रेस आया तो ये किसके पास रिडायरेक्ट करेगा, डुअल स्टैक राउटर टू द IPv6 नेटवर्क। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है जिसमें हम राउटर में ही कॉन्फ़िगर करा के रखेंगे IPv4 एड्रेसेस एज वेल एज IPv6 एड्रेस। तो हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा, सपोज IPv4 को डेटा सेंड करने का है IPv6 को, अभी ये तो 32 बिट है, IPv4 32 बिट का और ये कितने बिट का है, 128 बिट का, अभी कॉम्पेटिबिलिटी तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा तो ये डुअल स्टैक राउटर सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको 128 बिट का असाइन करेगा, 32 बिट को कन्वर्ट करेगा इनटू 128, और फिर विद द हेल्प ऑफ डुअल स्टैक राउटर ये किसके पास जाएगा, IPv6 के पास। तो इस टाइप से हम कॉम्पेटिबिलिटी सेट करेंगे, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। 128 वाला जाएगा पहले डुअल स्टैक के पास, सर्वर उसको 32 बिट में करेगा, और फिर वो 32 बिट कन्वर्टेड किसके पास जाएगा, IPv4 नेटवर्क के पास। तो ये फर्स्ट टेक्निक क्या हो गया, डुअल स्टैक राउटर। इसमें राउटर हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज टनलिंग। So what happens in tunneling? In a scenario where different IP versions exist on intermediate path or transit networks, tunneling provides a better solution where users data can pass through a non-supported IP version। तो ये एग्जाम डायग्राम से अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं हमें। तो अभी क्या हो रहा है टनलिंग में, ये बेसिकली क्या है, ये जो ड्रॉ किए हैं दिस इज अ टाइप ऑफ टनल, ठीक है। अभी सपोज ये IPv4 जो नेटवर्क है या IPv4 का होस्ट, अभी IPv4 अगर होस्ट है तो इसका एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का, ठीक है। IPv4 किसको पास कर रहा, IPv4 को ही, जो रिसीवर है वो भी कौन से नेटवर्क के ऊपर है, IPv4 के नेटवर्क के ऊपर, यानी 32 बिट का नेटवर्क है। पर जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है ये किसका नेटवर्क है, ये है IPv6 का नेटवर्क जो है 128 बिट का। समझ में आ रहा है ना, ये है हमारा होस्ट या तो सेंडर, और ये है हमारा रिसीवर। दोनों कौन से नेटवर्क के ऊपर है, IPv4, और ये भी है IPv4। बट ये जो पाथ है, इन बिटवीन पाथ है या ट्रांजिट पाथ उसको बोलते हैं अपन। तो ट्रांजिट पाथ पे क्या है, जो नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है वो है IPv6 का। तो कॉम्पेटिबिलिटी कैसे सेट होगा, विद द हेल्प ऑफ टनलिंग। तो ये टनल के अंदर क्या है, एक राउटर है,
ठीक है, डुअल स्टैक राउटर, यहाँ पे भी डुअल स्टैक राउटर है। तो ये 32 बिट को किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू 128 बिट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कौन सा नेटवर्क है, IPv6 का। फिर ये दूसरे राउटर के पास गया, यहाँ पे एड्रेस कितने बिट का आया, 128 बिट का। बट अपने को सेंड किसको करने का है, 32 बिट को। तो ये राउटर इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू 32 बिट। तो ये हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहेगा इन टनलिंग। टनलिंग कंसिस्ट ऑफ टू डुअल स्टैक राउटर्स through which the address are converted. So in the above diagram, ये हमने एक्सप्लेन किए हाउ रिमोट IP नेटवर्क्स कैन कम्युनिकेट वाया टनल। वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। वाइस वर्सा यानी यहाँ पे अगर हमने IPv6 लिए, IPv6 नेटवर्क, और ये भी हमारा कौन सा नेटवर्क है, IPv6, तो टनलिंग के थ्रू हम, और ट्रांजिट पाथ उस टाइम पे क्या रहेगा, IPv4 का। तो ये वाइस वर्सा भी इसकी प्रोसेसिंग पॉसिबल है। तो दिस इज टनलिंग। सो लास्ट टेक्निक इज NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ NAT translation technique, the IPv4 and IPv6 networks can also communicate with each other, which do not understand the address of different IP versions. अभी ये different IP versions क्या है वो हम अभी देखते हैं। Generally the IP version, यानी suppose IPv4 है या IPv6 है, doesn't understand the address of different IP version। यानी IPv4 IPv4 वाले को पहचान सकता, बट IPv4 IPv6 को नहीं पहचान सकता। सिमिलरली IPv6 वाला IPv4 को नहीं पहचान सकता। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकाले, हम क्या यूज़ करेंगे उस टाइम पे, वी विल यूज़ NATPT डिवाइस, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल डिवाइस। अभी ये प्रोटोकॉल डिवाइस क्या करेगा, इट रिमूव्स द हेडर ऑफ फर्स्ट IP वर्जन एड्रेस एंड ऐड द सेकंड IP वर्जन एड्रेस। अभी ये टेक्निक इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये IPv6 नेटवर्क है, तो ये कितने बिट का एड्रेस है हमारा, 128 बिट का। अभी 128 बिट वाला 128 बिट को ही पहचान सकता, सिमिलरली 32 वाला भी 32 को ही पहचानेगा। ठीक है, पर अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल करने का है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, NAT एनेबल्ड डिवाइस। NAT का मीनिंग हो रहा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एनेबल्ड डिवाइस। ये सिमिलरली काम करता है लैच के जैसा, जैसा एड्रेस ट्रांसलेशन लैच रहता है माइक्रो प्रोसेसर्स में, वो क्या करते हैं, एड्रेस और डेटा को सेपरेट करेंगे। उसी टाइप से नेटवर्किंग में जब एड्रेस ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं हो रहा उस टाइम पे हम ये NAT एनेबल्ड, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एनेबल्ड डिवाइस यूज़ करेंगे, जो ऑटोमेटिकली 32 बिट को किस में ट्रांसलेट करेगा, इनटू 128, और तभी जाके ये दोनों में कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, अगर यहाँ पे 128 वाला होस्ट बैठा है और इधर उसको ट्रांसमिट करने का है डेटा 132 बिट वाले के पास, यानी IPv4 के पास, तो यूजिंग NAT enabled device we can transmit the data. तो in the above diagram IPv4 address communicate with the IP address via the NAPT device. In this situation IPv6 address understand that the request is sent by the same version. सेम वर्जन का मीनिंग ये 32 को किस में कन्वर्ट किया, 128। तो इसको क्या समझ में आया कि किसने सेंड किया है, IPv6 ने ही, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। So what we have learned in this video lecture is differences between IPv4 and IPv6, basic differences, and transition techniques from switching from IPv4 to IPv6. So thanks for watching this video lecture.
With this we come to an end of unit number 2. If you have any questions or doubts, you can call me. In the upcoming lecture we will see unit number 3, and the topic is inter-domain and intra-domain routing. This is the most important topic of ACN subject, intra-domain and inter-domain routing.